Good morning, my dear respected students. And today again, I'm just begin with the concept of recursion here. And previously, yesterday we have discussed that how we are supposed to do the recursion, what is the purpose of recursion, the different types of recursion we can call it as, and many more things. So I just want to discuss one thing here. Kindly concentrate, my dear respected students. Yesterday we are discussing the content here that the example is write a program to print the sum of n natural numbers entered by the user using recursive approach. So I think so the same will be clear to you all, and this will be the output we have discussed yesterday, I think so. And today what we are begin with, my dear respected students, here it is. We are supposed to do it, write a recursive function to print a string backward. Kindly concentrate, my dear respected students. Now we are going to do it like this, that we are just going to print the string in a reverse order. So kindly concentrate. What I just means to say is that, for example, I have mentioned it like a cowl here. So what we are going to do when we talk about that this is reverse order, then we can call it as L, A, W, A and K. I think so. जो लोग मेरे से एग्री हैं कि सर यही है बिल्कुल जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, वो चैट बॉक्स में यस नो जो भी आप टाइप करना चाहे, वेरी गुड, बी को टाइप कर दीजिएगा. वेरी गुड, फटाफट. वेरी गुड. भगत का मैसेज आया, सिमरन का आया, जय का आया. Yes, Nupur, Manav, thank you very much. Thank you, Archie, God bless you. Okay, so what we are going to do here, kindly concentrate, my dear respected students, kindly concentrate here, that what we are going to do, and this thing is very clear now, that we are not going to use the approach of iterations where we are using a loops here. Now we are supposed to talk about that we are supposed to use the concept of recursion. So what we can do, we just mention it as def for declaring a function here, and we can mention the appropriate name which is used for a function. So we can simply mention it as reverse, and we can mention it as like this string, and we are just going to pass two different things. This S is representing a string itself, and the second thing we talk about, this is size, I think so. We can pass the size of that particular string. That's why we take it as. Okay. So in spite of writing the body of that particular program, so what we are going to do here, I'm just going to enter one string here. S is equal to input, and I just want to enter the string is equal to, and I'm just going to close this. So it says that yes. What I'm going to do here, I'm just going to ask from the user that they are supposed to enter a string here, and after that we can just call it, we can just call a function that is a reverse string here, and what we can do, we just pass that string along with the length of the string, but in that case, why we mention it as -1. बेटा कोई मुझे गाइड करेगा why I am mentioning here -1? मैंने लेंथ जो स्ट्रिंग की ली है, and why we take -1 along with that? कोई बताएगा? सर जो इंडेक्स होता है ना, जीरो से शुरू होता है और लेंथ से 1 माइनस करना पड़ेगा. अरे वाह अनिरुद्ध, ऐसी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि जब कंवलजीत सर कुछ पूछें तो जो कुछ लोग मेरे साथी हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ पे इस क्लास में, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ऐसे ही आप रिस्पॉन्ड करें. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ हम -1 कर रहे हैं, मतलब कि अगर कवल की ही बात करूं, KAWAL, मेरे ख्याल से 5 कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो what we can do, it begins from a 0 indexing. That's why we take it as a -1 here. Thank you very much for your kind cooperation, Anirudh ji. Okay, now what we can do here, we just mention if size is greater than is equal to 0. अब ध्यान से सुन लेना, हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है आपसे. Yesterday we have discussed two different things. One is base case, which is also to be called as, एक बार चैट बॉक्स में डालना, base case is also to be called as a. वेरी गुड. और अगर जो इनिशिएटिव लेना चाहता है वो अनम्यूट करके भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर चैट बॉक्स में नहीं डालना चाहते तो. अरे वाह, एक का मुझे मिल गया आंसर.
पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कोई अनम्यूट करके भी आएगा। वेरी गुड, एक का मिला है मुझे सिर्फ अभी आंसर, दैट बेस केस इज, खुशी अनम्यूट करके बोलते रहा एक बार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्टॉपिंग केस। अरे वाह क्या बात है। अच्छा अब मैंने लिखा, यहाँ पे मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल देता हूँ, बेटा ध्यान से देखिएगा प्लीज, और जो इसके रिगार्डिंग क्वेरी हो वो कवलजीत सर से पूछिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा that this is to be called as a base case as well as a stopping case। कहता ठीक है, कहता सर इसका अर्थ क्या हुआ, what is the meaning of that particular? This says that when we use the concept of recursion, we can specify a particular statement. With the help of that, we can stop the execution of that particular recursive function, and that particular thing is to be called as a base case, or simultaneously we can also call it as a stopping case। Okay, great sir. Sir, what you are going to do here next, I'm just going to print that particular, मैं मेरे प्यारे बच्चों आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर, मैं उसको प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं, कृपया करके ध्यान को एकाग्रचित करने की कृपालता कीजिएगा मेरे। यस, ओके डन। व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्प्ले, मेरे थोड़ा सा ना लैपटॉप में इशू आ रहा है, नो प्रॉब्लम, काइंडली गिव मी अ व्हाइल, एक सेकंड दे दीजिएगा, कहीं बंद ही ना हो जाए। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, इट सेज कवलजीत सर की आवाज आ रही है, प्लीज एक बार यस और नो में आंसर कर दीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। यस सर। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था मुझे लग रहा है ना। यस सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही थी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर जस्ट गोइंग टू अगेन शेयर आवर स्क्रीन हियर। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, काइंडली कंसंट्रेट एंड what happened here, okay, just wait for a minute। Okay, now what happened that I want to display the content of a string here, but in a reverse order though, so in that case we mention it as like size here, and by default as they move towards the next line, so what we can do here, we just mention it like this, that the content is supposed to be displayed in a same line, that's why we take it like this। And after that, for a recursive approach, we can call it as reverse string here, my dear respected students, and what we are going to pass here, s, and then there is a size -1। So here it is, this is the content here. First of all, just allow me to run that particular for a better clarity, and then we are just supposed to discuss each and everything, that what is the purpose and why we are using this thing। Okay, I'm just going to press F5 and hit that enter key here, and mentioning here that is a cowl। Okay, it's great, so the content is there। And my dear respected students, I just want to mention one more thing here, that recursive case, this is to be called as a recursive case। अच्छा, अब जरा कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा प्लीज, जिनसे मैं पूछूं वो मुझे उसी तरीके से आंसर देते जाइएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं टॉप से स्टार्ट करूंगा। संजना, जस्ट टेल मी द नेम ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, होपफुली मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को। वेरी गुड, संजना जी, संजना जी, संजना यू आर, आप अनम्यूटेड हैं मेरे ख्याल से, यू आर अनम्यूटेड बट योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल टू मी। ओके, नो प्रॉब्लम। अनिरुद्ध जी, कैन यू प्लीज गाइड मी द नेम ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सेप्टिंग अ स्ट्रिंग? सर s variable। Okay, s variable। Anirudh ji, kindly tell me one more thing here, that this is the function that is a reverse underscore string here. We are passing that s string and length -1 here, and that is to be, and this thing is supposed to be move here and store in that particular. What is the purpose of this if size is greater than is equal to 0? I am unable to understand that thing.
सर वो रिकर्शन को स्टॉप करने के लिए बेस केस है. Okay, this is a base case, means this is a base case, and the purpose of base case is that we are supposed to stop the recursion of a particular function, then it is to be considered as a base case. Thank you very much. Okay, God bless you. Okay, Khushi, can you please tell me what is the purpose of this print statement? I am unable to understand why we are taking it as. उसका लास्ट लेटर प्रिंट कर देगा सबसे और पहले। अच्छा, अगर लास्ट आ गया, जैसे ये कवर ले रहे हैं तो एल तो आ गया यार, फिर वो दूसरा कैसे ए कैसे आएगा, वो समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा वो गाइड कर दीजिए प्लीज। और वो दोबारा सब फिर रिकर्शन होएगी, फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, और एस के अंदर क्या है, खुशी जी गाइड कर दीजिए, एस के अंदर क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या स्टोर है बेटा? कवर। कवर। हाँ, घबरा के मत बोलो, कोई चिंता वाली बात नहीं। Okay, first of all, when the size is passed here, the size is 4, I think so. And when we call again this thing, what will be the value of size? Archie Dhawanji, what will be the value of size if we call that function again? Archie Dhawanji. सर प्लीज रिपीट, मेरा भी नेटवर्क इशू है, वॉइस क्रैक हो रही थी आपकी। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, this is a reverse string function, my dear respected student, and I am just talking about this thing. Then when we call that particular function in an initial stage from the main here, the value of that particular is 4. But when we talk it about, then again when we called it, what will be the value of size here? Size -1. Second time, पहली टाइम तो 4 है, सेकेंड टाइम इसकी वैल्यू क्या होगी 4 के बाद? 3 होगी। और अगर 3 होगी तो क्या डिस्प्ले करेगा? यहां से चेक करिएगा प्लीज, यहां से कंसंट्रेशन करिएगा। व्हाट विल बी द आउटपुट हियर? कोई चैट बॉक्स में भी डाल रहा है मुझे, वेरी गुड। वन स्टूडेंट इज ऑल्सो टाइपिंग द चैट बॉक्स। ओके, अगर यहाँ पे 4th में एल स्टोर है तो मेरा बेटा यहाँ पे 3 में क्या स्टोर होगा? ए स्टोर होगा। वेरी गुड। And in that case, they are supposed to call it again and again. That's why we call this line as a recursive case, that this recursive case is supposed to be performed again and again, my dear respected students. And that will be stopped with the help of one code here, which is to be called as a base case. जिन लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो वो कृपया करके मुझे चैट बॉक्स में यस टाइप कर दे या हैंड रेस कर दे। जैसे यस कर दीजिएगा। चलिए, मैं ये अप्रोच देख रहा हूं आपकी कि आप मुझे यस कर दीजिए। अरे सिमरन ने तो ए डाल दिया, ए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सब लोगों की मुझे एक्सपेक्टेशन है, सब लोगों से मुझे एक्सपेक्टेशन है कि सब लोग मुझे यस टाइप करेंगे। एक जने से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर क्वेरी, सिमरन जी प्लीज अनम्यूट करिए, नो प्रॉब्लम। सिमरन जी, यू हैविंग अ क्वेरी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। यस सर। जी बोलिए प्लीज। सर जो साइज है, माफी चाहता हूँ सिमरन, आपकी आवाज नहीं आई मेरे तक, सॉरी। अगेन इट्स नॉट ऑडिबल। बेटा किसी को सुनाई दे रही है? खुशी, सिमरन की आवाज आ रही है बेटा आपको प्रॉपर? नो सर। खुशी अनम्यूट करना नहीं आई ना, सुनाई नहीं दे रहा है ना, सही तरीके से बोल के रही है, पहले आ रहा था। चलिए सिमरन जी, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इफ यू कैन टाइप योर क्वेरी इन अ चैट बॉक्स, आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट आउट, नो इश्यूज विद दैट। सर देन इफ स्टेटमेंट, सर देन इफ स्टेटमेंट, सिर्फ इतना ही आया सिमरन जी। इफ स्टेटमेंट क्या होगा मुझे समझ नहीं आया। कहता है इफ स्टेटमेंट बेटा बेस केस का मतलब है इट मूव टुवर्ड्स रिवर्स स्ट्रिंग व्हेन द कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट साइज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। जैसे ही वो -1 हो जाएगा ना साइज, then it is supposed to be terminated. This is the way out, I think so. अगर आपकी sir is not allow 0. Okay, no problem. चलिए, kindly concentrate, my dear respected students. Here it is. I having a PPT again. I'm just going to display the content here.
and this is the program here what we have discussed, and this will be the desired output what which is being required here. So now next thing, अब जरा brain को थोड़ा सा sharp up कर लीजिए. It's my humble request. Write a program to find the sum of first n even numbers using a recursion. अब मुझे थोड़ा सा एक एक करके गाइड करना है आप लोगों ने, and then only I am able to do that particular thing, that how we can display that particular sum of first n even numbers. N means the value is being expected from the user itself. एक एक करके मैं गाइडेंस लेता जाऊंगा सब लोगों से. तन्या अनम्यूट करना यार. तन्या मेरा बच्चा अगर अवेलेबल है तो नो प्रॉब्लम. प्रभजोत जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर. हाँ जी. प्रभजोत मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा कैसे करना है. हाउ वी कैन सॉर्ट आउट दिस? दैट क्वेश्चन इज दैट वी आर सपोज टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स यूजिंग रिकर्शन. रिकर्शन यूज करके जो यूजर एंटर करेगा. फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया n इज इक्वल टू इंट और मैंने एंटर किया हियर इट इज इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ n. मैंने ये तो कर लिया, मुझे यहां तक तो समझ आ गया. और मैंने फॉर एग्जांपल ये भी मुझे समझ आ गया कि मैं यहां से एक फंक्शन का नाम ले लेता हूं. मैंने लिखा s_e ले लेता हूं, मुझे समझ आया, और n पास कर देता हूं यहां से. और अब मैंने क्या किया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, आई एम जस्ट गोइंग टू मेंशन हियर दैट इज अ डेफ s_e एंड हियर इट इज द n हियर. बट अब मुझे आगे समझ नहीं आ रहा कि यार क्या करूं. मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब कि जो वैल्यूज हैं n इवन वैल्यूज. फॉर एग्जांपल जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है फर्स्ट 5 इवन वैल्यूज. मतलब मेरे ख्याल से 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, ये 4 हो गया, यहाँ 10 आ गया. अब ये कैसे आएगा? प्लीज गाइड मी. प्रभजोत थोड़ा सा कर सकते हैं आप गाइड? यस सर. वेरी गुड. बोलिए क्या लिखूं यहाँ पे? सर इसमें वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिकर्शन वाला ही आएगा ना? हाँ, आप मुझे थोड़ा सा अगर कोड से गाइड कर दे, कोडिंग से गाइड कर दे तो मुझे थोड़ा सा बेहतर लग जाएगा. So if n is less than equal to 1. If n is less than is equal to 1. अच्छा, अगर n की वैल्यू less than is equal to 1 होती है, ठीक है. सर अभी 12 ले सकते हैं हम. नहीं सर, एक मिनट. कोई बात नहीं, इधर सुनिएगा, एक सेकंड सुनिएगा. जब वो आपका जो आप बात कर रहे हैं n की वैल्यू जब 1 पे आएगी तो आपको एक्सपेक्टेशन है क्या? प्लीज ये एक गाइडेंस दीजिएगा. ये देखिए जरा. नुपुर एक मिनट देखना. नुपुर. यस सर. मेरा पुत्र आ देख, मैं की लिख रहा. मैं लिख रहा 1 2 3 4 5. मैंने ऐसे लिख दिया, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर. तो स्टॉपिंग तेरा जो केस है वो क्या होना चाहिए? अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, मेरे ख्याल से चेक करना एक बार. अगर मैं लिख दूं n इज इक्वल टू 1. नुपुर मेरा जो लॉजिक है एक बार देखना प्लीज. मैंने कहा कि अगर n की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो जाए तो वो मुझे क्या रिटर्न कर दे? मुझे क्या चाहिए? एक बार जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों. जो हमारे यहाँ पे और भी शिष्य अवेलेबल हैं, मैं एक बार सबसे बात करने की कोशिश करूंगा. भगत देखना जरा एक बार मेरा पुत्र. मैं कह रहा हूं यहाँ पे मैंने लॉजिक लिखा है ऊपर, अगर n की वैल्यू 5 होती है तो वैल्यूज आ रही हैं 2 4 6 8 10. भगत मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर. ओके. और मैंने कहा कि ये इस तरीके से है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ वैल्यू. ठीक है. अगर मैंने यहाँ लिखा अगर किसी भी केस में जो n इज इक्वल टू 1 होता है तो ये मुझे क्या रिटर्न कर दे? ये मुझे रिटर्न कर दे 2. मेरे बेटे को मेरी बात समझ आई कि नहीं आई यहां तक? प्लीज थोड़ा सा गाइडेंस दीजिएगा. So n is equal to 1 का मतलब क्या है? ठीक है. ये n इज इक्वल टू n का मतलब, ये 1 का मतलब ये है मेरा पुत्र कि ये n की वैल्यू क्या है? 5 है हमारे पास, है ना? 5 है ना? तो अब हम करना, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट करता हूं. देखना जरा एक बार ध्यान से. मैंने अब यहाँ पे और कोड लिखना शुरू किया. मैंने लिखा रिटर्न n मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस s_e दैट इज अ इवन
and n minus 1. अब जरा इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करना, देखना जरा एक बार. अब मैंने फुल फ्लैश प्रोग्राम लिख दिया है, full fledged program I have written here. So kindly concentrate and now elaborate that what is the purpose of that particular code. मेरे बच्चों एक बार देखेंगे प्लीज ध्यान से. अब कौन कर सकता है elaborate मेरे लिए? हैंड रेस करें फटाफट 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 फटाफट. We are going to elaborate this that what is the purpose and how we can do it. मेरे बच्चों कौन कर सकता है? फटाफट, घबराने की आवश्यकता नहीं है. सिमरन अनम्यूट करेंगे. अब आपकी आवाज आ रही हो तो एक बार अनम्यूट करिएगा. यस सर. हाँ अब आ रही है. सिमरन एक बार गाइड करिए प्रोग्राम जो मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि देख फटाफट करके और आगे भागने का कोई बेनिफिट तो है नहीं. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग दैट व्हाट इज द पर्पस एंड हाउ वी कैन डू इट. ये जो मैंने कोड लिखा है इससे कुछ समझ आ रहा है आपको? कुछ अंडरस्टैंडिंग है इससे? यस सर. जैसे अगर हमने n की वैल्यू 1 दी यहाँ पे. नहीं, अब देखिए तो प्लीज यहाँ पे देखिएगा, प्लीज यहाँ पे देखिए. मैं आपके साथ साथ एलैबोरेट करूंगा, बाकी सब भी देख रहे हैं. मैंने कहा n इज इक्वल टू 5. ये नीचे देखते जाना. मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, आई हैव मेंशनड हियर दैट दिस इज एक्सप्लेनेशन. दिस इज एक्सप्लेनेशन. मैंने लिखा कि अगर तुमने एंट्री किया n इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये n इज इक्वल टू 5 हो गया. इसने फंक्शन कॉल किया और पास क्या किया, दैट विल बी 5. तो इसका मतलब है जब यहाँ पे हम रीच किया, इस लोकेशन पे हम रीच किए, तो यहाँ पे n के अंदर क्या अवेलेबल है? 5 अवेलेबल है. मेरे बच्चे को मेरी बात यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर. ओके. वो कहता है अगर 5 इज इक्वल टू 1 है. अब ये मुझे बताओ कि ये वाली मेरी कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स. फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो इफ के अंदर जाएगा कि एल्स के अंदर जाएगा? सर एल्स. एल्स के अंदर चला गया. अब एल्स के अंदर आप लोगों ने क्या लिखा हुआ है? आपने लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाय 2. 5 मल्टीप्लाई बाय, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? 5 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके. यहाँ पे हम लोगों ने लिखा दिस इज अ प्लस हियर. मैंने यहाँ पे ऑपरेटर डाला प्लस और मैंने कॉल किया s_e और मैंने n-1 की बात की. तो n आपके पास पहले 5 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया. ठीक है. अब थैंक यू वेरी मच. अब मैं नेक्स्ट जा रहा हूं तन्नम के पास. तन्नम थोड़ा सा गाइड कर, फटाफट आ जा. नेक्स्ट केस में आ जा मेरे पास. वेरी गुड तन्नम. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर तन्नम को मेरी आवाज नहीं आ रही तो मैं जाता हूं इस बार जय कौर के पास. जय फटाफट मेरी आवाज सुन जरा. यस सर. मेरा पुत्र, अब आपके पास n की वैल्यू क्या हो गई है? n इज इक्वल टू 4. अब आपके पास n की वैल्यू 4 है. 5 मत कर. 4 हो गई. अब n की वैल्यू 4 हो गई. अब हमने क्या किया, फिर चेक किया if 4 इज इक्वल टू 1. ये मेरा बेटा ट्रू है कि फॉल्स है? सर फॉल्स. वेरी गुड. अब मैंने अगर इसको बात की, अगर ये तूने मुझे बोला फॉल्स है, तो मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट किया. यहाँ पे अब 5 की जगह 4 कर दिया और यहाँ पे अगर 1 माइनस किया तो क्या हो गया? 3 हो गया. 3 हो गया. अब जरा बताओ कौन नेक्स्ट वाली वैल्यू बता सकता है? वेरी गुड. अब अपने आप एक बार इनिशिएटिव लो, जरा हैंड रेज करिए. अब मुझे लगता है कि कुछ लोग आएंगे, अब मुझसे कुछ लोग बात करेंगे. वेरी गुड. अरे वाह, अब सिमरन भी आ गया, अनिरुद्ध भी आ गया. अनिरुद्ध नेक्स्ट वाला बोल जरा एक बार. सर 2. अरे वाह. अब मेरे पास n की वैल्यू, मेरे बच्चे ने बोला n की वैल्यू 2 तो नहीं है यार, अभी मेरे ख्याल से 3 है मेरे पास उत्तर. सर 3 होगी. हाँ 3. अच्छा, अब मेरे पास अगर n की वैल्यू 3 हुई तो मैंने लिखा if 3 इज इक्वल टू 1. ये मेरे पास फॉल्स है कि ट्रू है उत्तर? सर फॉल्स. फॉल्स है. और मैंने अब क्या किया, मैंने यहां से उसको कॉपी और पेस्ट किया. अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 3. क्या आया उत्तर? 3. ओके. और यहाँ पे इस जगह पे जो मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे थे, इस जगह पे हमने क्या किया, इस जगह पे आके हमने मेंशन कर दिया दैट विल बी 2. ठीक है. अब ये हुआ क्या, कृपया करके ध्यान एकाग्रचित कीजिएगा. अब मैंने इसको दोबारा से कॉपी किया, इस जगह पे आके पेस्ट किया. अब मैंने यहाँ पे किया n इज इक्वल टू 2 here. So it says that this is 2 here. Okay. Sir, after that what happened here? Kindly guide us that here it is 2 multiply 2 and it is saying that this is 1 here.
So what happened now? If अब यहाँ पे अगली बार किया if n means 1 is equal to 1, तो उसने मुझे in spite of calling that particular function उसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया? That will be 2. मेरे बच्चों को जिनको मेरी बात समझ आई हो वो एक बार हैंड रेज कर दीजिए फटाफट। वेरी गुड, यहां तक जिनको मेरी बात समझ आ गई हो। अभी तक सिर्फ अनिरुद्ध ने, भगत ने, सिमरन ने, मानव ने, अरे आप किसका नाम लूं, सबने कर दिया। आरती ने भी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ओके, अब मैंने क्या किया, काइंडली कंसंट्रेट। अब मैंने इसको प्लस करना, अब हमने क्या किया, अब इसको वैल्यूज को हमने देखना शुरू किया। कृपया करके देखिए आप जरा, मैंने क्या किया, एक्सप्लेनेशन इज डन, नाउ वी कैन जस्ट डिलीट दिस थिंग F5 एंड वी कैन कॉल दैट पर्टिकुलर। मैंने यहाँ पे इसको कॉल किया और यहाँ आके देखिए मैंने मेंशन किया 5 हियर एंड हिट दैट एंटर की। मुझे जरा गाइड कर दीजिएगा कि कुछ आया नहीं, क्यों नहीं आया। अब मेरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि सर आया क्यों नहीं। सर प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लगाई। अरे कहाँ लगाऊं, थोड़ा सा बता तो दे। यहाँ लगा दूं, चलेगा। यस सर। अरे वाह, मैंने यहाँ पे आया 5 लगाया और एंटर हिट किया, क्या आया सम जरा चेक करना। सम क्या आया, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। यस और सर नो। 30। और कैसे आया, इसको टोटल करना एक बार जरा। 10 + 8 कितने होते हैं सर 18। अरे 18 + 6 कितने होते हैं सर 24। 24। अरे 24 और 4 कितने होते हैं 28। और 28 और 2 कितने होते हैं 30। इसका मतलब स्माइल के साथ हमारा आउटपुट आ गया, दैट दिस इज द एक्चुअल आउटपुट। यस, वी हैव डन विद दैट। जितने बच्चों को समझ आ गया हो वो एक बार मुझे जरा इसमें हैंड्स अप कर दें, थम्स अप कर दें या हैंड अप कर लें, जो मर्जी कर लें, फटाफट फटाफट रेज हैंड कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूं वहां पे, मैं चेक कर रहा हूं। वेरी गुड, पार्टिसिपेशन में। और जिसकी जो क्वेरी है वो क्वेरी फटाफट टाइप कर दीजिए यहाँ चैट बॉक्स में। मैं एक बार देख लेता हूँ फटाफट। अभी सिर्फ और सिर्फ भगत का हैंड रेज आ रहा है मुझे, बाकी मुझे किसी ने अभी भी मुझे हैंड रेज नहीं आ रहा। अगर मेरी आवाज आपको ऑडिबल है, if my voice is audible, then you are requested to kindly raise your hand, or you can just type in a chat box that yes sir, this thing is clear. दे रहा था। Okay, so this is the actual content here. Kindly concentrate. This is the actual content what we have discussed earlier. And my dear respected student, kindly concentrate. This is a graphical representation, the graphical demonstration here. This is 10. Why take it as 10? That n, the value of n is 5, multiplied by 2, that is 10. Then they call that particular function 10 plus s underscore e, pass that 4. Next it pass 3, next it pass 2, next it pass the value that is 2 here. And what happened here, kindly concentrate. This is a graphical demonstration. 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is 12, and 12 plus 8 is 20, and then this is to be considered as a 30 here. So this is the actual content. Hopefully that this thing is clear to you all. Yes or no में एक बार chat box में डाल दीजिए, सर समझ आया या नहीं आया। Very good. It's my humble request. Kindly tell me in a chat box, yes or no. Very good. I'm still waiting for your responses, and hopefully I get those responses here in a chat box. Okay, Archie Dhawan says yes. Thank you very much, Archie. Okay, God bless you. God bless you. Thank you very much. Okay, so next thing we are talking about, we just talk about the next thing. Here it is. Kindly concentrate, my dear respected students. It says, write a program to find the sum of first n odd numbers using a recursion. So now I am not going to do anything for you here. I just want that you are supposed to elaborate and tell me that how this particular program is converted to find the sum of odd numbers using a recursion. Even वाला बिल्कुल डन है। अब सिर्फ आपने मुझे गाइड ही करना है कि ये ऑड वाले कैसे फाइंड करेंगे। कौन लेगा इनिशिएटिव? वेरी गुड, एक बार हैंड रेज करके। ये भगत का पहले से हैंड रेज है कि अब किया है? भगत अगर अभी किया है तो अनम्यूट कर लीजिएगा। भगत ने हैंड डाउन कर लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम।
कौन करेगा एक बार हेल्प, फटाफट देखिए। इसी प्रोग्राम को ऑड वाले में कन्वर्ट करना है। वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इट इन अ ऑड वन। वेरी गुड सिमरन, सिमरन थैंक यू सिमरन फॉर टेकिंग इनिशिएटिव, वेरी गुड। सिमरन अनम्यूट करिए, बोलिए। यस सर। हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे हम इसको स्टार्टिंग ऑफ 1 3 5 7 9 हाँ अब ये ऐसे देखिए ना, करेंगे। ये देखिए ना सिमरन जी, अब ऐसे हुआ ना, मेरे ख्याल से 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे ही होगा ना। और अगर मेरा पुत्र इसकी इंडेक्स वैल्यू चेक कर लूं अपनी तरफ से, तो मैंने कहा 1 2 3 4 5, इसका जो एन की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे वो इस तरीके से आ गई है। ठीक है, अब आप मुझे गाइड करिए, मुझे कहाँ कहाँ चेंज करना चाहिए। एक चेंज तो मैं कर रहा हूँ अपनी तरफ से, S_O कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे अप्रोप्रिएट लगे थोड़ा सा कि हम ऑड वाले की बात कर रहे हैं, ये चेंज मैंने कर दिया। बाकी और कहाँ रिक्वायर्ड है? अनिरुद्ध ने भी हैंड रेज किया हुआ है, वेरी गुड। अब ये देखिए ना, सबसे पहली चेंज आप ये देखिए, यहाँ पे अगर जब n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो मुझे 2 की जगह क्या वैल्यू चाहिए? 1। वेरी गुड, अनिरुद्ध बोलेगा अब नेक्स्ट। थैंक यू सिमरन। अनिरुद्ध अब यार नेक्स्ट वाले में क्या चेंज करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा यार मुझे। सर वो मल्टीप्लाई बाय 1 होना। मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, चल तेरे कहने पे मल्टीप्लाई बाय 1 कर लेता हूं, पर मुझे थोड़ा सा शंका है उसमें कि अगर n मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो तो 5 आ जाएगा, पर हमें तो अभी जो हम लास्ट वैल्यू देख रहे हैं वो तो 9 आ रही है। तो 9 कैसे आए? जैसे मतलब कि n मल्टीप्लाई 2 किया, मतलब 5 मल्टीप्लाई 2 वो तो 10 हो गया, तो उसको 9 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा गाइडेंस खुशी। सर अगर हम n+2 लिख कर ले तो? अगर n+2 कर लें तो वो कैसे बात बनेगी? मतलब तू ये देख ना, तेरे को अब पहली वैल्यू 9 चाहिए उत्तर, फिर 7 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 3 चाहिए, सर फिर अगर 1 हम चाहिए। आगे से मूव करें? हाँ आगे से भी कर सकते हैं, पर अभी एग्जिस्टिंग सिनेरियो में मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा था। सिमरन कुछ बोलना चाहती है मुझे लगता है। n into सर 2 n plus to 2 1. minus 1। अरे वाह, ये कौन बोला, ये कौन बोला, ये कौन बोला? ये सिमरन बोली है और आर्ची भी बोली है, मुझे लगता है। दोनों हाँ, दोनों दोनों ने बोले। बोला है ना। ये देखो आप, इन्होंने दोनों ने क्या लॉजिक लगाया कि सर कवलजीत सर बार बार कह रहे हैं n मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब है अगर n 5 है, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, बट अगर मैंने -1 कर दिया तो 9 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, n इज 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 8, बट -1 दैट इज 7। तो इस तरीके से, और यहाँ पे हमने क्या किया, अगर n इज इक्वल टू 1 है, then in spite of returning a value 2, because this time we required a value that is a 1, that's why I take it as that this is to be considered as a 1। मेरे बच्चे जितने लोग मेरे साथ एग्री हैं रन करने से पहले इस प्रोग्राम को, वो हैंड रेज करके बता दें कि सर हम आपसे एग्री हैं एंड दिस इज द एक्चुअल आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। फटाफट फटाफट जो लोग मेरे साथ एग्री कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यस सर ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नुपुर, प्रभजोत, तन्यम, गुरप्रीत, गुरप्रीत से आप बात नहीं हुई। गुरप्रीत एग्री करते हैं आप, यस और नो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज मी जी। सर वो 2 - 1 पे ब्रैकेट नहीं डालेगी? सर ब्रैकेट बिना डाल के एक बार चला के देख लें, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे हमारे से? नहीं सर। क्योंकि जो हायरार्की होती है, जब हम ऑपरेटर का जो प्रायोरिटी लेवल चेक करते हैं, उसमें माइनस पहले आता है गुरुजी या मल्टीप्लाई पहले आता है? सर मल्टीप्लाई। तो फिर ये पहले मल्टीप्लाई करेगा अगर ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो। यस सर। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट। अब मैं F5 प्रेस कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट गोइंग टू हिट दैट एंटर की एंड आई जस्ट वांट टू चेक हियर। ये देखिएगा कवलजीत सर यहाँ पे n = 5 कर रहे हैं और एंटर हिट कर रहे हैं, 25 आया। अब जरा चेक कर लेना एक बार, 9 + 7 नुपुर कितना होता है? मुझे नहीं आता, बता दे प्लीज, गाइड कर दे थोड़ा सा। 9 + 7 16। 16 + 5 21। 21 + 3 24। 24 + 1 25।